ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଦିନକର ଘଟଣା, ଜଣେ ମା ଜଣେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ମା ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞରେ ସହଭାଗିତା କଲାପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଅତି ଭୋରରୁ ସେ ଉଠେ, ନିଜର ଅଗଣାକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜର ଅଗଣା ପରିଷ୍କାର କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଥାଏ, ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ମା କେବେ ମରିବ? ତାପରେ ତାରି ନିକଟରେ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହସିଲେ। ତେବେ ସେହି ମାର ମୁଡଟି ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବନ୍ଦ କଲା। ପୁଣି ତହିଁଆର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ନିଜ ଅଗଣା ପରିଷ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ସେହି ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ମା ମରିବ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହସିଲେ। ଆଉ ମା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଗଣା ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ପଡ଼ୋଶୀର ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେବେଳେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମା ମରିଯିବ? ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଶୁଣି ପୁଣି ସେହି ଯୁବକମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେହି ମା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବନ୍ଦ କଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ନାହିଁ, ପାରିଶ ପିସ୍ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମା ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମା କ'ଣ ହେଲା ତମର? କାହିଁକି ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁନ? କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମାଟି ସବୁକିଛି କହିଲା। ତାପରେ ଯାଜକ ଜଣକ କହିଲେ, ମା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଛି, ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ମାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗଣା ଝାଡ଼ୁ ବା ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୃହର ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟି ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମା କେବେ ମରିବ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଆଟି ଯାଜକଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଆସିଛି, ହୁଏତ ତାହା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା? ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ମା ଚାଲିଯିବ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏହି ପକ୍ଷୀଟି, ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟି ଯାହା ଫାଦରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେବେଳେ ଏହି ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ପରି ଯାହା ଶିଖିଥିବା ତାହା କହିଗେଲି ଚାଲିଥାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ବା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଆମମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। ଆମମାନେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ପରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିଥାଉ। ତେବେ ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇ ଦିଅ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଅଛି। ଯେପରି ପାଦ୍ରେ ପିଓ କହନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର ଅମ୍ଳଜାନ। କିମ୍ବା ଯେପରି ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ସାଧୁ ଜନ୍ ମେରୀ ଭିଆନୀ କହନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଏ, ସେ ମୋତେ ଅନାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଏ, ସେ ମୋତେ ଅନାଏ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନେକ ପୁଣି କହନ୍ତି, ଏହା ଏକ କଥୋପକଥନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପିତାଙ୍କ ସହିତ।
प्रभु सहित केते जण कहती प्रार्थना प्रभुंकर इच्छा जानिबा से जहाँ भी होना कहीं आज आम जिते जीशु को देखु था सब बेले से प्रार्थना करूँ तेणु शिष्य मैंने पचारे कारण से समय साधु जहन तांकर शिष्य मानक शिखई गोटे प्रकार प्रार्थना एवं अनेक दल गुड़ाक था एक निर्दिष्ट प्रार्थना थिला आउ जीशु जो ये प्रार्थना शिखेले प्रभुंकर प्रार्थना अति गुरुत्वपूर्ण अति अर्थपूर्ण अति शक्तिशाली अटे। तेबे आज आम कहीं प्रार्थना बेले बेले अनेक समय आम निराश हो जाओ आम प्रार्थना करिथाओ किंतु बेले बेले आम उत्तर पाई न थाओ बेले बेले आमर प्रार्थना प्रभु शुणती ना बोली आम अनुभव करिथाओ आउ बेले बेले प्रार्थना आम छाड़ी देउ किंतु केमिति प्रार्थना कले बा काहीकि प्रभु आमर प्रार्थना शुणु नाहांती बा केमिति आम प्रार्थना करिया उचित से विषय आज पठन गुड़िक ध्यान रखी मु कहवाक चाहे। प्रार्थना आम जानूँ प्रथम पठन में किपरि अब्राहम सदम एवं गमरा सहर जोड़ा कि पापरे पूर्ण थिला अन्याय पूर्ण थिला प्रभु ध्वंस करने प्रस्तुत थिले एही समय अब्राहम तांक लोक मानक पई से सदम गमरा पई से प्रार्थना करुछंती से प्रभु को ठारे वार्तालाप करुछंती ही इज हैविंग ए डायलॉग विथ गॉड तांक सहित से प्रार्थना करुछंती से आमे जानू प्रभु तुम्हें कौन 50 लोक को जदि भल थे से 50 जनक कौन तुम्हें अन्य को ध्वंस कर आईपरी भाव अब्राहम एवं पिता ईश्वर ठारे वार्तालाप चली एपरिक 50 जदि 45 जन धार्मिक था जदि 40 जन धार्मिक था जदि 30 जन धार्मिक था जदि 20 जन धार्मिक था जदि 10 जन भी था यही प्रकार से बार्गेन करती तुम्हें कौन यही लोक मान अन्य मान को ध्वंस कर कि देखु अब्राहम यही सदम गमर प्रति किपरि प्रभु ठारे अनुनय विनय कर दया तांकर न्याय लड़ुंट आईटा ही प्रार्थना आम जिते बड़े सुसमाचार को आसवा आम जानूँ जीशु को प्रकार प्रार्थना शिखेले तेबे प्रभु कहीं आमर प्रार्थना शुणुना प्रथम विषय आम चिंता करवा अनेक समय आम जिते बड़े प्रार्थना करूँ आम निजर विषय कही था प्रभु को आमर केवल मोर पिता मोर बापा मोर भाई मोर भौणी प्रार्थना करूँ आम ईश्वर इच्छा अनुसार आम प्रार्थना कर किंतु आज प्रार्थना रे से शिखेले जितेबाला आम प्रार्थना करवा ईश्वर इच्छा मोर इच्छा नहीं मोर योजना नहीं किंतु ईश्वर इच्छा अनुसार आमको प्रार्थना करने अनेक समय आम निजर इच्छा अनुसार करमिति मारिया प्रार्थना कले जितेबाला से प्रभुंकर दूत आसी संदेश देले से माँ हेबे से गर्भवती हेबे से विचलित हेले से उत्कंठार सहित से बुझी पारे ना तथापि जितेबाला गाब्रिएल दूत कहले पवित्र आत्मा द्वारा ये सब कार्य संभव हम पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें आवरब पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें गर्भवती आई समय से आम जानूँ लूक 1:38 पदरे कहले देख मु तुमर दासी तुमर इच्छा अनुजाए मो जीवन में संगठित तुमर इच्छा अतएव निजर इच्छा नहीं तुमर इच्छा आम जब देखा लूक सुसमाचार 22:42 पदरे लेखा अच्छी जितेबाला जीशु जंत्रणा अनुभव करते से चाहिए ना जंत्रणा प्रभु नहीं जाओ ये पानपात्र दूर कर किंतु 22:42 शेष से कहते प्रभु मोर इच्छा ना तुमर इच्छा मतलब सब बेले आम जितेबाला प्रार्थना करवा निश्चय आम हूँ तो प्रार्थना करवा कि प्रभुंर इच्छा अनुजाए तेणु आज जदि आम प्रार्थना प्रभु शुणुना अनेक समय मोर इच्छा अनुजाए मुझे प्रार्थना करुच्ची। द्वितीय विषय अनेक समय प्रभु शुणती ना आम प्रार्थना कारण आम आमर हृदय अनेक राग क्रोध अन्य को क्षमा न दे आम प्रार्थना करिथाओ किंतु प्रभु जीशु कौन शिखेले अन्य को क्षमा दियो बोली से शिखेले अर्थात जदि आम अन्य को क्षमा न दे आम जेते प्रार्थना कले प्रभु शुणा ना आम आंठुपति हाथ जोड़ी हाथ उठाई जेते प्रार्थना करवा किंतु हृदय रे अन्य प्रति राग क्रोध थी आ प्रार्थना आसवा प्रभु शुणे ना तेणु से कहती जितेबाला माथ्यू 5:23 जितेबाला तुम नैवेद्य अर्पण करने को जाओ आ मन पड़े तुम्हें कहारी सहित जदि तुम किसी संपर्क भल ना तेरे प्रथम नैवेद्य थोई दियो जाओ आउ क्षमा दे आस तुम नैवेद्य ग्रहण योग्य हेब तेणु आम आमर प्रार्थना प्रभु शुणुना
कारण आम अन्य को क्षमा न दे आम प्रभु गुहारी कर तेणु जड़े लेखक कहते आमर अधिकार ना प्रभु प्रार्थना करने जदि अन्य को आम क्षमा देना तेणु जीशु आम जानूँ से क्रूसरे थाई निजर शत्रु मान को क्षमा देले से कहले प्रभु लोक 23 अध्याय 34 पदरी से कहती एमाने कौन कर जानू ना एमान को क्षमा दियो। तृतीय विषय आम आज सुसमाचार आम शिक्षा कही पाइबा कहीं प्रभु आम आमर प्रार्थना शुणती ना कारण अनेक समय आम केवल निजपाई प्रार्थना करिथां। याकूब 4 अध्याय 3 पदर लिखा अच्छी तुम्हें अनेक समय पाओ ना कारण तुम्हें मागो ना तुम्हें पाओ ना कारण तुम्हें मागिले मध्य पाओ ना कारण तुम मागिबारे स्वार्थ अच्छी अर्थात सब बेले आम जिते मागुछु मु मोर बापा मोर भाई मोर पु मु मोर एटा सब स्वार्थपर प्रार्थना। तेणु जीशु आज शिखेले हे आमर स्वर्गस्थ पिता आमको आहार दियो आमर पाप क्षमा कर एटा व्यक्तिगत प्रार्थना सामूहिक अर्थात जदि मो घरे आज दुख अच्छी मो घरे आज रोग अच्छी सेमती केते जे परिवार रोग अच्छी केते जे परिवार अशांति अच्छी तांको पई कोन मु प्रार्थना करे तेबे आज जितेबाला आम प्रार्थना करिया आमर ये 5टी आंगुठी को देखा आईटा आमको सूचई देव जे आम किपरि प्रार्थना करवा उचित कहापाई प्रार्थना करिया उचित प्रार्थना रे कौन विषय रहिबा उचित। प्रथमतः जितेबाला आम हाथ जोड़ी यही प्रकार रोचु प्रथमतः आम समाज में यही आंगुठी द्वारा यही जो लिटिल फिंगर बा ये क्षुद्र अंगुली द्वारा आम प्रार्थना करवा जेते जन आम समाज में क्षुद्र अच्छा छोट अच्छा गरीब अनाथ विधवा माने आम प्रार्थनार मुख्य स्थान ग्रहण करवा उचित। द्वितीयतः यही अंगुठी जो मुद्रिका अंगुठी बा रिंग फिंगर आम कहूँ यहीटा द्वारा आम गोटे नुआ परिवार गठित होता है परिवार ये मुदी द्वारा विवाह समय एक नुआ परिवार गठन होता है। अतएव आज जे आम परिवार परी अनेक भग्न परिवार गुड़िक अच्छी से आम प्रार्थना करवा उचित। तृतीय एटा मिडिल फिंगर जोटा कि सबू आंगुली ठारू टिके उच्चा आंगुली अर्थात आमर केवल जे धर्म शासक बा प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति सरपंच जे भी हेड अच्छी जमी यही अंगुली सबू अंगुली ठारे उच्च सेहीपरि आमर देशर राष्ट्रनायक मानक आम प्रार्थना करवा उचित कारण से गोटे निर्देश में सबकि परिवर्तन हो जाए सबकि अचल हो जाए अतएव तांपाई केते जे प्रार्थना करवा आवश्यकता आम करूना तेणु यही अंगुली सूचई दिए जे आमर राष्ट्रनायक जो माने लीडर अच्छा नेता अच्छा समाजर हो घरर हो बा विभिन्न कम्युनिटी हो आम प्रार्थना करवा उचित। तो चतुर्थ यही अंगुली सूचई दिए जड़े जड़े शिक्षक जिते बड़े शिक्षा दिए कौ अंगुठी से व्यवहार करे पिला माने देख ये कौन लिखाई यहाँ एमती होगा कथा अर्थात प्रत्येक गुरुं प्रार्थना करवा हे तो आम परिवार आम पितामाता गुरु हो पारती स्कूल रे गुरु जो मैंने आमको ज्ञान दियंती से आम प्रार्थना करवा। चतुर्थ पंचम यही अंगुली वृद्धा अंगुली यहाँ आमको सूचई दिए जिते आम हस्त जोड़ी आम प्रार्थना करूँ मोर हृदय रही है अर्थात जो मैंने मोर हृदय निकट मोर बापा मोर माँ मोर भाई मोर भौणी जो मैंने मोर परिवार बा अन्य माने तांको पाई केवल शेष में मु प्रार्थना करवा आवश्यक। अतएव आम कहीं प्रभु शुणुना कारण आम अनेक समय केवल निजपाई करूँ अन्य करूना। पुणी आउ गोटे विषय प्रभु शुणु आम प्रभु प्रार्थना करिया बेले निराश नहीं बारंबार केबे हत केवल प्रभुंकर 3टी उत्तर अच्छी जिते भी आम प्रार्थना करूँ केवल 3टी गोटे है येस जदि ठीक अच्छे प्रभु कहे हाँ बोली उत्तर देवे नचे नहीं बोली कहे ना अपेक्षा कर वेट वेट यहाँ ना जे प्रभु आमर इच्छा अनुसार कर कि से वेटिंग अर्थात से अपेक्षा करने समय आमपाई एक परिवर्तन समय हे तो आमर मन को आमर दृष्टिकोण को आमर भावना को परिवर्तन करने प्रभु सुजोग दे था। अतएव प्रिय भाई भौणी मैंने आज प्रभु ठारे बापा रूपे आम तांको भरसा रखी प्रार्थना करवा जहाँ यीशु शिखेले आहा ही आम करवा जे सब बेले आम ईश्वर इच्छा अनुसार प्रार्थना करवा। द्वितीय आम क्षमार हृदय सहित प्रार्थना करवा। तृतीय अन्य मानक प्रार्थना करवा। चतुर्थ बारंबार धैर्यर सहित जमी सिमियन एत वर्ष जेरूसालेम जीशु को दर्शन करने अपेक्षा थे जमी 84 वर्ष वयस्क अन्ना 2 अध्याय आम पढ़ुचे लुक 2 अध्याय आम से आम मैंने केवे हताश नहीं आम मैंने प्रार्थना सहित
प्रभु आज आम समस्त को आशीर्वाद करंतु जेपरी आम ईश्वर इच्छा अनुसार आम प्रार्थना करी सहभागिता हेबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।